یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما مراد ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مہاجرین مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہیں، اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے سچوں کے ساتھ ہونے کا ارشاد فرمایا۔ اس مناسبت سے سچائی کی فضیلت پر احادیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت ہے، سچائی بھلائی کی طرف ہدایت ہے، اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے، اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صدیق کا معنی بہت سچا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے۔ ایسی بے پرکی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا، بس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا، یعنی اس کے جبڑے بار بار چیرے جاتے رہیں گے۔ حضور نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک فرشتہ کینچی سے اس کے ادھر سے جبڑا کاٹتا ہے، یہ گال، دوسری طرح ادھر سے پھر ادھر سے کاٹتا ہے۔ جب ادھر سے کاٹتا ہے تو ادھر والا پہلے کی طرح برابر ہو جاتا ہے، پھر وہ جب یہ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو کاٹتا ہے، جب ادھر کاٹنے لگتا ہے تب پہلے والا واپس اسی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو کاٹتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ فرمایا یہ جھوٹ بولنے کی بندے کو سزا مل رہی تھی، اور یہ اس کو قیامت تک ایسے سزا ملتی رہے گی۔ استغفر اللہ، جھوٹ بولنے کی کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت اور کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے، اور اس میں رقت اور نرمی محسوس ہوتی ہے دل میں۔ ایمان پر خاتمے، قبر اور حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے، اور کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے۔
इसकी तरगीब से मुताल्लिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो उसे देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। और दीनदार दोस्त तलाश करने की तरगीब देते हुए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सच्चे दोस्त तलाश करो और उनकी पनाह में जिंदगी गुजारो, क्योंकि वो खुशी की हालत में जीनत और आजमाइश के वक्त सामान है। और किसी गुनाहगार की सोहबत इख्तियार न करो, वरना उससे गुनाह करना ही सीखोगे। बेशक ऐसे ही है। आज भी हम जमाने में देखें कि जो चरसी मवालियों के साथ बैठता है, अगरचे शुरू में बोले भाई मैं इससे बचूंगा, मैं तो अच्छे खानदान से हूं, मैं वो ऐसा 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 वो भी उन्हीं की डिग पे आ जाता है, उन्हीं के रास्ते पर आ जाता है। जो सिगरेट पीने वालों के साथ बैठता है वो उसको एक दफा चस्का लगाते हैं, वो फिर उन्हीं के साथ पक्का सिगरेट पीने वालों। ये एक छोटी सी मिसाल दी है। तो हकीकतन ऐसा ही है कि जो बंदा जैसों के साथ उठता बैठता है, जिनकी सोहबत इख्तियार करता है, उन्हीं के रास्ते पर फिर चला जाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, 5 किस्म के आदमियों की सोहबत इख्तियार न करो। नंबर 1, बहुत झूठ बोलने वाला शख्स, क्योंकि तुम उससे धोखा खाओगे। उसका काम ही झूठ बोलना है, वो तुम्हें भी झूठ बोल देगा। वो सेराब यानी सहरा में पानी नजर आने वाली रेत की तरह है। वो दूर वाले को तेरे करीब कर देगा और करीब वाले को दूर कर देगा, झूठ बोल के, चुगलियां करके, आगे पीछे इधर उधर की लगा बुझा के। फरमाया नंबर 2, बेवकूफ आदमी, इसकी सोहबत भी इख्तियार न करो, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी हासिल न होगा। वो तुम्हें नफा पहुंचाना चाहेगा लेकिन नुकसान पहुंचा बैठेगा, क्योंकि वो है ही बेवकूफ। अपनी बेवकूफी की वजह से फायदे की बजाय वो नुकसान पहुंचा देगा। और नंबर 3, बखील शख्स, कंजूस शख्स, क्योंकि जब तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वो दोस्ती खत्म कर देगा। हकीकत भी ऐसे है। और नंबर 4, बुज़दिल शख्स, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। और नंबर 5, फासिक शख्स, क्योंकि वो तुम्हें एक लुकमे या उससे भी कम कीमत में बेच देगा। किसी ने पूछा कि लुकमे से क्या कम है? आपने फरमाया, लालच रखना और उसे न पाना। ये 5 आदमियों से बचने का कहा गया है। याद है कि किसी को अपना पीर और मुर्शिद बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी होता है कि उसकी सोहबत के जरिए उससे फैज हासिल किया जा सके। यूं ही बाअमल उलमा की सोहबत में बैठने की भी बहुत फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उलमा की सोहबत में बैठना इबादत है। दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरो तो कुछ चुन लिया करो। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, जन्नत के बाग क्या चीजें हैं? इरशाद फरमाया, इल्म की मजालिस। सुभान अल्लाह। यहां इससे बैठ चुनने से मुराद ये है कि इल्म कुछ सीख लिया करो उलमा। और इसकी हदीस में तशरीह भी की गई है कि जो इल्म की मजालिस हैं वो जन्नत के बाग हैं, वो जन्नत के बाग हैं। लिहाजा तुम भी उसमें से कुछ ना कुछ फूल चुन लिया करो। किस चीज के? इल्म के फूल। हजरत साहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो चाहता है कि वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मजलिसों की तरफ देखे, जो चाहता है वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मजलिसों की तरफ देखे, उसे चाहिए कि उलमा की मजलिसों की तरफ देखे। कि कोई मर्द आता है और कहता है कि ए फुला, यानी मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आप इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं जिसने अपनी औरत के बारे में इस तरह कसम खाई? बस वो आलिम कहता है कि उसकी
औरत को तलाक हो गई और एक दूसरा शख्स आता है और कहता है आप उस मर्द के बारे में क्या कहते हैं जिसने अपनी औरत के बारे में ऐसी कसम उठाई, तो वो कहता है कि वो मर्द अपनी इस बात के साथ खानिस यानी कसम तोड़ने वाला है। और यह बात कहना यानी अहकाम शरअ बयान करना जायज नहीं मगर अंबिया और उलमा के लिए। ये शरीयत की बातें बताना किसी और का काम नहीं, अंबिया का काम है और उलमा का काम है। बस इस बात से उलमा की शान पहचान लो, इस बात से उलमा की शान पहचान लो। यानी लोग मुफ्तियान कराम से, उलमा से अपने मसाइल पूछते हैं। कोई मर्द आके फला मसला पूछता है, कोई मर्द आके फला मसला पूछता है, फिर उलमा उसको शरीयत के मुताबिक रहनुमाई करते हैं। और यही रहनुमाई करना अंबिया का काम है। जो उलमा कर रहे हैं वो अंबिया के नक्शे कदम पर हैं, उनके वरसा हैं, लिहाजा इससे उनकी शान ज़ाहिर हुई। एक और हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो उलमा की सोहबत में बैठा तहकीक वो मेरी सोहबत में बैठा। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी हदीस है, नहीं समझे शायद आप लोग। फरमाया जो उलमा की सोहबत में बैठा वो मेरी सोहबत में बैठा। जो उलमा की मजलिस में बैठा वो ऐसे समझो मेरी मजलिस में बैठा, जहां रसूलुल्लाह बैठा करते और सहाबा नबी पाक की मजलिस में बैठा करते। क्या शान है। जो उलमा की सोहबत में बैठा तहकीक पक्की बात है, बेशक वो मेरी सोहबत में बैठा। और जो मेरी सोहबत में बैठा यकीनन वो अल्लाह की बारगाह में बैठा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उलमा की मजालिस से अलग न रहो, उलमा की मजालिस से अलग न रहो, इसलिए कि अल्लाह ने रूए जमीन पर उलमा की मजालिस से मुकर्रम किसी मिट्टी को पैदा नहीं फरमाया। सुबहान अल्लाह। हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करो जिन्हें देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए, जिनकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे, जिनका अमल तुम्हें आखिरत का शौक दिलाए। अल्लाह ताला हमें नेक लोगों को अपना दोस्त बनाने, इल्म की मजालिस और उलमा की सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और इससे आखिरी एक बात, अल्लामा अब्दुल्ला बिन अहमद नस्फी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत से साबित हुआ कि इजमा हुज्जत है, इजमा हुज्जत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सादिकीन के साथ रहने का हुक्म दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया, सादिकीन के साथ हो जाओ। ये नहीं कि अकेले अकेले रहो, नहीं, जो सच्चे लोग हैं उनके साथ इकट्ठे हो जाओ, मिल जाओ। हर बंदा, जैसे मिसाल के तौर पे अहले हदीस बोलते हैं भी कुरान और हदीस हमारे पास है तो हमें किसी और की तकलीद करने की क्या जरूरत है। अल्लाह पाक तो फरमा रहे और दूसरे लोगों के साथ हो जाओ, अकेले नहीं रहो। वो कहते हैं नहीं, हम किसी इमाम की पैरवी नहीं करेंगे, हम अकेले ही ठीक है। अल्लाह पाक तो इस चीज से मना कर रहा है। तो इस बात से इजमा और तकलीद साबित हुई इस आयत से, कि इस आयत में बताया गया कि कूनू मा सादिकीन। पहले फरमाया आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और जिस बात का अल्लाह हुक्म दे रहा है उसको मानो। क्या, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के बारे में तफसीर हो चुकी है कि सच्चे कौन से लोग मुराद है। सहाबा के बारे में भी है, नेक लोगों के बारे में भी है। और इस हदीस पाक से भी साबित होता है कि इजमा हुज्जत है। इजमा क्या है, हुज्जत है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना उम्मती ला तजतमिउ अला दलालतिन फ़इज़ा रअयतुम इख्तिलाफन फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म। बेशक मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा न होगी, तो जब तुम इख्तिलाफ देखो तो बड़ी जमात को लाजिम पकड़ो, बड़ी जमात को लाजिम पकड़ो। तो इस हदीस से भी बड़ी जमात से मुराद, जब बड़ी जमात के साथ रहने का हुक्म है, अकेले रहने का हुक्म नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ हमने सुना समझा उसको अल्लाह पाक हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नेक लोगों की सोहबत के साथ रहने पर एक शेर याद आया, सोहबत अल्लाह वालों की
अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की। और सोहबत जो है वो अपना रंग दिखा जाती है। कौन सी? सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। दर्द व अलम हो, रंज व गम हो, कोई भी मसला हो, जब तार अल्लाह से फिर बंदे का जुड़ जाता है नेक लोगों के साथ होके, तो फिर वो नेक लोगों की सोहबत के साथ साथ रहते ही बंदे की तार अल्लाह से जुड़ जाती है। और ये हकीकत है कि सोहबत अपना असर दिखाती है। और भी इस पर कई सारे अशार भी हैं, अकवाल भी हैं। बहरहाल सोहबत का असर होता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह।